اس مارکا میں افواج پاکستان نے نہ صرف حملہ آور دشمن کو اس کے تصور سے بڑھ کر ہزیمت بچائی، بلکہ ہماری بری، بحری اور فضائی افواج کی پیشہ ورانہ مہارت اور اعلیٰ جنگی حکمت عملی نے دشمن کو پسپائی پر مجبور کیا۔ ہمارے دشمن یہ جان لیں کہ پاکستان کے خلاف آئندہ کسی بھی مہم جوئی کی کوشش کی گئی تو اس بار جنگ کے اثرات محدود نہیں بلکہ انتہائی وسیع، خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ بھارت پاکستان میں فتنہ الخوارج کی پشت پناہی بند کرے، بھارت کو آپریشن بنیان المرصوص کی صورت میں جواب دیا گیا۔ دشمن نے داخلی ناکامیوں کا الزام پاکستان پر لگایا۔ مارکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھولا نہیں سکتے۔ مارکہ حق کے شہداء اور ان کے ورثاء ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ ہم مظلوم کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، ہر سطح پر کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے۔ ایک سال قبل پاکستان کو مارکہ حق میں شاندار کامیابی ملی۔ قرآن میں ہے، اور اعلان کر دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ تنگ نظر بھارت ماضی میں بھی فالس فلیگ آپریشن کیا۔ بھارت خود کردہ واقعات کا الزام پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا۔ مئی 2025 کا واقعہ اچانک پیش آنے والا واقعہ نہ تھا۔ اس بار بھی ہندوستان اپنی فرسودہ سوچ اور خود فریبی کا شکار ہوا۔ بھارت خود کردہ واقعات کا الزام پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت پاکستان پر الزام لگا کر خطے میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتا تھا۔ مارکہ حق دو ممالک یا افواج کے درمیان روایتی جنگ نہ تھی، در حقیقت مارکہ حق دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ مارکہ حق میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فتح ہمیشہ حق کا مقدر بنتی ہے۔ افغانستان اپنی سرزمین سے دہشت گردی کا خاتمہ کرے۔ شہداء کی قربانیوں کو امانت، اپنی کامیابیوں کو اللہ کا احسان سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی قیادت اور سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ جو حضرات کمپیوٹرز کی آواز اشارہ ہے کہ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی پریڈ وینیو میں تشریف لا رہے ہیں۔ مارکہ حق میں روایتی دشمن بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح کا ایک سال مکمل۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ پریڈ گراؤنڈ میں فیلڈ مارشل نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جبکہ اس سے قبل ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور چیف آف نیول سٹاف نے یادگار شہداء پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی، جس کے بعد مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے جنرل سلامی پیش کی۔ تقریب کے اختتام پر تینوں مسلح افواج کے دستے تبورے کے سامنے گرے۔ فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف نے سلامی لی۔ صدر مملکت کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر قوم اور مسلح افواج کو خراج تحسین۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے جرأت مندانہ فیصلوں کو مارکہ حق کی کامیابی میں کلیدی قرار دے دیا۔ صدر مملکت کا سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو، سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف کو بھی خراج تحسین۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں کی غیر معمولی مہارت اور صلاحیتوں کو بھی سراہا۔ بحری افواج کی آپریشنل تیاریاں اور دفاعی صلاحیتیں قومی سلامتی کے لیے قابل فخر قرار۔ صدر مملکت نے کہا، پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ریاست ہے۔ ہم نے دشمن کی جارحیت کا بھرپور مگر متوازن جواب دیا۔ پاکستان نے دنیا کو اپنی دفاعی صلاحیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا، بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی معطلی کی کوشش آبی دہشت گردی ہے۔ پانی کروڑوں پاکستانیوں کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ صدر مملکت نے کہا، افغانستان اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ خطے کے امن کے لیے ناگزیر ہے۔
वजीर आजम शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दलेराना क़यादत पर भरपूर खराज तहसीन, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर और एडमिरल नवीद अशरफ को भी बेहतरीन हिकमत अमली पर खराज तहसीन पेश किया। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर अपने पैगाम में वजीर आजम ने कहा, पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फौज के अफसरान और जवानों को सलाम पेश करती है। मार्का हक अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात और एहसानात का दिन है। वजीर आजम ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। आज हम इस अज़्म, जुर्रत और इस्तिकामत को याद कर रहे हैं जिसका मुजाहरा पूरी कौम ने किया। उन्होंने कहा, आजमाइश की घड़ी में पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार बन गई। आज के दिन हमारे जवान फुलादी दीवार बनकर अपने वतन के दिफा के लिए डट गए। हमारी अफवाज के मुनज़्ज़म रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान को एक नाकाबिले तस्हीर कुव्वत के तौर पर मनवाया। अफवाज पाकिस्तान ने बरी, बहरी, फजाई और साइबर महाजों पर मरबूत रद्द-ए-अमल दिया। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तानी कौम अमपसंद होने के साथ बहादुर, बावकार, साबित कदम और गैरतमंद कौम है। मार्का हक पाकिस्तानी कौम की मुतअद्दिद खूबियों की रोशन दलील है। मार्का हक पाकिस्तान की जुर्रत और नाकाबिले तस्खीर दिफाई कुव्वत का मजहर है। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। पाक फौज, फिजाइया और बहरिया की पेशावराना महारत कौम के लिए बाइसे फख्र है। हमें वतन पर जाने निछावर करने वाले बहादुर सपूतों पर नाज है। वज़ीर आला सिंध ने कहा, शानदार कामयाबियों के पीछे पीपल्स पार्टी का विजन और दहाइयों की कुर्बानियां हैं। जुल्फकार भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखकर पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया। बेनजीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम को नई सिमत देकर मुल्की दिफा को जदीद तकाजों से हम आहंग किया। सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में हंगूर क्लास आबदोजों का हसूल जारी है। हंगूर क्लास आबदोजों का हसूल समंदरी दिफा को नाकाबिले शिकस्त बनाएगा। क्वेटा में जश्न फतह की खसूसी तकरीब, वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी की खसूसी शिरकत। अपने खिताब में कहा, मुसल्लह फौज ने भारत का खित्ते की ताकत होने का गुरूर हाथ में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्तें दो चार किया। दुश्मन को दोबारा कभी मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं होगी। अगर भारत ने दोबारा ऐसी हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। मुल्क की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के हमरा मीडिया ब्रीफिंग, कहा, तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बड़ी सनतों की पैदावार में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरामदात में सालाना 14% इजाफा हुआ। वजीर आजम की क़यादत में अवामी रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी हैं। बैरूनी अदायगी हर वक्त यकीनी बनाई जा रही है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, चैलेंजेस के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाई गई। आलमी सतह पर पेट्रोलियम कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। मुश्किल वक्त में तावन पर सऊदी हुकूमत के मशकूर हैं। कतर और UAE के भी शुक्रगुजार हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में अवाम को अरबों रुपए की सब्सिडी दी गई। सदर मुमलिकत वजीर आजम और नायब वजीर आजम ने भी भरपूर रहनुमाई की। बिजली की पैदावारी लागत कम से कम करने के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहम तरीन दौरा चीन का शेड्यूल तय। 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब ली कीचियांग से भी मुलाकात करेंगे। अहम वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे के दौरान अमरीका ईरान जंग और इसके असरात पर मुशावरत होगी। दो तरफा ताउन के मुतादिद मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाक चीन दोस्ती की 75 साल की तकरीबात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ ने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए ताकि आवामी मुश्किलात में कमी लाई जा सके। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर आवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। नून लीग हुकूमत की वफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि आवाम की मुश्किलात को हल करे।
जंग बंदी के हवाले से हमारी तजावीज पर ईरान की जानिब से जवाब जल्द मिलने का इम्कान है। मामलात आगे न बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के कलील मुद्दती ऑपरेशन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम करने के दूसरे तरीके भी हैं। बोले ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे CIA की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहरान कई माह तक बहरी नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। CIA की रिपोर्ट से बाखबर एक अहलकार का कहना है कि अंदाजे के मुताबिक तेहरान कम अज कम मजीद 4 माह तक अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बर्दाश्त कर सकता है। इससे जाहिर होता है कि वाशिंगटन तेहरान पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पा रहा। ताहम एक सीनियर इंटेलिजेंस ओहदेदार का कहना है कि CIA की रिपोर्ट के मुताबिक दावे दुरुस्त नहीं। इनका दावा है कि बहरी नाकाबंदी के बायस ईरान को शदीद माली नुकसान पहुंच रहा था और इसकी मईशत तेजी से गिर रही थी। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर शमा उबैदुल इस्लाम से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मसालती किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में बांग्लादेश की वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा शमा उबैदुल इस्लाम ने ईरान अमरीका तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के मसालती किरदार को सराहा। इस मौका पर तिजारत और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। तिजारती और सकाफती ताल्लुकात के फरोग के लिए बाहमी वफूद के ज्यादा से ज्यादा तबादलों पर इत्तेफाक हुआ और बांग्लादेश के वजीर खारजा के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। बांग्लादेशी वजारत खारजा के सेक्रेटरी मोहम्मद नजर इस्लाम, डायरेक्टर जनरल जनूबी एशिया इशरत जहां, डायरेक्टर शमीमा यास्मीन, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इमरान हैदर भी इस मौका पर मौजूद थे। माँ बच्चों की पहली दरसगाह और किरदार साजी की सबसे बड़ी मीमार है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं से मोहब्बत का इजहार का आलमी दिन मदर डे मनाया जा रहा है। माओं से मोहब्बत के इजहार का आलमी दिन मनाने का मकसद इस अजीम और मुकद्दस रिश्ते की अहमियत का एहसास उजागर करना है। माँ एक खूबसूरत हस्ती, लाजवाल रिश्ता, दिन हो या रात औलाद के लिए करती है सुबह शाम बस काम। जिंदगी के तमाम दुखों और मुसीबतों को अपने आंचल में छुपा लेती है। माँ वो हस्ती है जो अपनी औलाद के चेहरे पर सिर्फ मुस्कुराहट बखेरती है। माँ की दुआ इंसान की कामयाबी, सुकून और खुशहाली की सबसे बड़ी ताकत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मदर्स डे पर पैगाम। कहा यह दिन हमें माओं की अजमत, एहतराम और खिदमत का पैगाम देता है। माँ दुनिया की सबसे अजीम हस्ती और बेलौस मोहब्बत की अलामत है। इन्होंने कहा कि माँ की कुर्बानियाँ नस्लों की तामीर और समाज की तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करती हैं। बोले खातीन और माओं के तहफ़्फ़ुज़, सेहत और फलाह के लिए हुकूमत के इक़दाम जारी हैं। एक मुहज़्ज़ब और मजबूत समाज की बुनियाद माँ की बेहतरीन तरबियत से कायम होती है। इनका कहना था हमें अपनी माँ की इज्जत, खिदमत और मोहब्बत को जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। माँ की शफकत इंसान के लिए कुदरत का सबसे कीमती तोहफा है।